Okay, so we've started this series of talks, and in the last talk, we were talking about the outpatient assessment of psychiatric patients. And we had highlighted in that over a period of an hour or so, what are the broad factors that you would keep in mind while running an outpatient service. And some of those factors were to do more with institutions that have outpatients rather than clinics which have outpatients. However, today's talk is going to be largely a demonstration of how to go about it. That is, if a patient now has come to your OPD and the whole triage and everything else that we discussed the last time. Incidentally, we have new friends today who've joined us, new participants to today's activity. So this particular interaction that we had last time is recorded, so it can be reached on the THT website as much as on my own channel, YouTube channel. So you can actually catch up on what we had discussed the last time. But I would certainly like you to now look at it more from a demonstration perspective. We have a patient with us today on whom we will do an outpatient assessment as a new case. And then, of course, after we have done that, then we will do a demonstration for you of an outpatient where the patient has been to the psychiatrist before and has now come for a follow-up. So we'll try and do the skills involved in both of these activities in an outpatient setting. Now, make sure that you are able to mark me and take some revenge on that, because I've been marking you all my life on your performance. So here you are. You can settle your scores, your chance today to see if I've missed things, if I've done things wrongly, if I did not do them the way that we as psychiatrists are expected to do. We are asking you to do that primarily for a discussion perspective, although you would very much like to fail me as well. I can understand your feelings on that. But we will try and do that more as a discussion subsequent to our interactions, and then raise questions and queries how I could have done it a little better through your feedback. So I'm going to just very quickly put that particular slide on for you and ask you to make a note of the points that I am supposed to cover. Now, these are all slides from the previous interaction that we have had. You don't have to bother. Just go to this slide, new case, first consultation. So that's the scenario that we had discussed. I would like you to make a note of all these points. I'd leave you with this slide for a minute or so that you can make a note of all this and see if some of these areas are properly covered in my interaction with the patient. Idea is for you to actually see how to do it. This, of course, is just a suggestion for all of you to keep in mind. And it is no reflection on the way you've been trained to do it. It is no reflection on how you could actually do it much better than what is being demonstrated to you. So be very comfortable about it. It's just one of the ways of how you can actually go about a new case in first consultation of a patient who has been brought by a lady. The lady has come to see me and I have no idea why she's here. So I'm going to just demonstrate to you how do I deal with that situation, first of all. She's going to come in and she's going to say that she wants to tell me about a patient that she has brought, but she doesn't want that patient to be here while she talks about it. So how do I respond to that particular concern of hers? That is often a scenario in an outpatient. So what kind of words, what kind of sentences you can use? Of course, we'll try and do that in Urdu. The patient that we're going to have speaks fluent Saraiki, but is not very fluent in Urdu. So I might be switching from one to the other. So I hope you will be able to manage. Some of my friends from Sheikh Zayed and
areas closer to the south of Punjab would probably understand it much better than the others. But I'll try and translate things if it becomes complicated for others as well in our interaction. So if you have made a note of all that I have said on this slide that I'm expected to do in a new case in the first consultation in an outpatient. Remember, this is an outpatient setting. This is not history taking. Keep a note of that. I'm not taking a history. If you remember, I'm here to primarily reach to the provisional diagnosis and decide whether this individual needs to be admitted or not. Is he an emergency? Is he requiring any specific differentials from a medical perspective or organicity perspective? Should I now immediately start treatment, or can I observe him for some period of time? Those are the kind of conclusions that I'm expected to make by the end of my interaction with this patient. Some other things that you would also need to make a note of, which may not happen directly with the patient, but I will demonstrate to you, are also these. I'm leaving you with this slide so that you can make a note of them. Okay, so if you're done with all this, I'm going to come back to the patient and then do the demonstration for you. Okay, lovely. So herein comes, I'll just show you, and I had demonstrated to you the clinic setting in which we try and make sure that the patient and the family, whoever comes to us, is not really sitting across from you, that they are provided with a comfortable chair, which is at least at one arm distance away, placed primarily at an angle of about 45 to 60 degrees. You don't have to use a protractor for that. Just approximate yourself in your setting of the clinic. And we had shown to you also in our previous interaction that there are a few things that need to be always there in your clinic: your ophthalmoscope, your stethoscope, your hammer, your BP apparatus. Of course, you can have any variety of BP apparatuses that you so prefer or like. So please try and focus not too much on what the patient is saying. Try and see as much as, or watch as how much I am doing and saying. That's more of a demonstration of skills rather than of how the patient is behaving and doing things. So that's the general focus that we're going to keep. So we're going to ask, first of all, the lady to come in, and you need to make a note of things that I do when I see the lady coming in and talking to me. Assalamu alaikum ji. Doctor, can I come in? जी आइए तशरीफ लाइए, यहाँ तशरीफ रखिए. How are you? Not too bad. जी. So doctor, I'm not the patient. जी. I have someone with me. I just wanted to tell you a few things that I have noticed around the house. He's my servant. I have him at my home. So I brought him with me because I thought it's like I have to do something about it. Okay. So I truly appreciate this. आपने बहुत अच्छा किया. आपको लगा कि कोई ज़हनी नफ्सियाती मसाइल हैं, तो अक्सर लोग तो इसे इग्नोर ही कर देते हैं इस बात को. तो बड़े कमाल की बात किया आपने. उनको सोचा कि मुझे उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना. So let me tell you what's going on. असल में मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि साइकियाट्री में हम अपना जब काम करते हैं मेंटल मरीजों के साथ, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम उनसे पहली दफा मिले खास तौर पर, तो हम उनसे खुद मिलकर एक आइडिया फॉर्म करें उनके बारे में. और अगर आप मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बता देंगी पहले ही अपने कंसर्न की वजह से, तो उससे ये होगा कि मेरा जहन उनके बारे में पहले से उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा
जितना कि मुझे होना चाहिए उनकी असेसमेंट के दौरान। तो आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Okay, no problem. But he might not tell you everything that I have noticed. कोई बात नहीं, तो हम ये करेंगे कि जहाँ पर भी मुझे लगा कि अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आपसे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जिस तरह से आप उनके रवैयों को देख रहे हैं या उनकी बातों को सुन देख रही हैं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो आपके पास है। तो किसी जगह पे जहाँ ज़रूरत महसूस हुई तो मैं आपको ज़रूर दोबारा ज़हन में दे दूँगा। तो अभी आप मुझे यहाँ तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट लग सकते हैं उनके साथ गुफ्तगू करके। तो इस दौरान में 20-30 मिनट में आप अगर कुछ और काम करना चाहें तो वो कर लीजिए। You don't want me to be in the room? जी बेहतर यही है। Okay, no problem. आप उतनी देर में कहीं जो भी आप कोई काम करना चाहती हैं या इंतजार करना चाहती हैं। Okay, yeah, no problem. I'll just send you in then, and then I'll ask you later. जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको। Okay, thank you. इनका नाम क्या है? जी आरिफ। आरिफ साहब। अच्छा ठीक जी, तो आप फिर Okay, take care. I'll बेटा इनको सब कुछ सच बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए टिश्यू। आरिफ इधर कर लें कुर्सी थोड़ी सी, मैं आपकी मदद कर दूं। हाँ बैठ। जी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। अगर एक काम कर रहा हूँ तो दूसरा काम याद आ जाए तो वो जो काम कर रहा हूँ वो वहीं रह जाता है, दूसरा काम मुझे याद आ जाए तो वो काम करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे अंदर कोई भूत है, कोई जिन्नात है। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं कि तेरे अंदर जिन्नात है। मेरी बीवी भी मुझसे डरती है, कहती है तेरे अंदर जिन्नात है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, इसी मेरी वजह से झगड़े हैं। मेरे पूरे खानदान में झगड़े मेरी वजह से। ये मुझे नहीं पता चला कि मेरे अंदर जिन्नात है या मेरे अंदर दिमाग से अंदर कोई चीज़ है, ये मुझे नहीं पता। इसलिए कुछ समझ नहीं आती मुझे। ऐसे दिल करता है जब कोई दिमाग मेरा खराब हो जाए ना, तो दिल करता है जाके किसी ऊंची जगह से छलांग लगा। जब किसी चीज़ से डरता हूँ तो बिल्कुल मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है। कभी कभार एक साइड पर दर्द होता है, दिमाग की साइड पर, कभी इस साइड पर। समझ नहीं आता कि ये दर्द क्यों। ठीक। अच्छा, जो आप मुझे बातें बता रहे हैं ये आप उर्दू में बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको उर्दू अच्छी लगती है बोलनी या कोई और जुबान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें आप आसानी से बात कर सकते हैं? जी सराइकी। ठीक है, थोड़ी बहुत सराइकी मेरे को आती है, पूरी तरह आती। ठीक है, जिससे तुसी ये महसूस करो ना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਾ ਸਕਦੇ। अच्छा ठीक है, और दूसरी गाल ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਦਸਾ ਸਕਦੇ। अच्छा ठीक है, ठीक है। थोड़ी बहुत मेरे को समझ आती है जी। जे मेरे को ना समझ आई तो मैं फिर साढ़े को ज़्यादा तफसीली पूछ लांगा, फिर हो सकता है उर्दू करनी पे तां ਤੁਸੀਂ मिल जुल के जरा गलबात करें। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ जमात की थी? जी 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 जी। अच्छा, ये जी मैं गल लिखा ना मैं कोशिश करांगा उर्दू च लिखा जी, ठीक है। ते जे तां लगे कि गलत गल मैं लिख छड़ी है तुसी नजर ओदे ते रखना जरूर जी, ठीक है। जी। ते फिर बाद विच मैं तां दिखा भी देसां जी कि तुसी ओनु ठीक भी कर सकदे हो। ये इंज नहीं है तुसी लिखी है जी जी
ठीक है ना किते मैं गलत ना गल लिख लवांगा जी 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 ते वो जरूरी गल्लां मैं बाकी गल ताड़ी मैं 100% पूरी तवज्जो नाल सुनदा पिया ठीक है ठीक है जी जरूरी बातें जो आपने मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताई है ना आरिफ वो आपने बताई बहुत मुझे फौरी तौर पर समझ भी आएंगी आप बातें कर रहे थे और उर्दू में कर रहे थे मैं आपसे जैसे भी कहा कि आप किसी भी जुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं सराइकी में भी बता सकते हैं तो कोई ऐसी गाल जिहड़ी तुसी कहना चाहते हो लेकिन तुहानू अल्फाज ना मिले उर्दू विच गाल करन दे या जिहड़ी तुसी गाल कीती है ओहदे च पूरा मानी तुसी उंज नहीं कह सके जिवें तुसी कहना चाहते हो जुबान दी वजह नाल ते ओह तुसी खुल के ओहदे च कोई गाल जिहड़ी है ओह ज्यादा तफसील नाल दस्सना चाहते हो या मेरे को दसना चाहते हो सराइकी च मतलब वो भी दस सकते हो जो गल्लां पहले करेंदे रह गए जी जी मसला ये है कि जेड़ी मैं चीज़ां याद रखा थोड़ा जिहा उच्चा बोल सो जी जी मसला ये जेड़ी चीज़ां मैनू याद हैं वो याद हैं मगर काफ़ी सारा चीज़ां हैं जेड़ा मैं हुण मसले विच आया इहदे विच मैं कुछ चीज़ां याद खोई हम जिस तरह मैं काम करता पिया कोई लकड़ का काम करता पिया थोड़ी देर बाद वो काम लकड़ का मैनू रह गया सी कि मैं रोटी खानी मैं रोटी खा लूं फिर वो लकड़ का काम उत्थे रह गया फिर मैं जाके रोटी खा रोटी खाने दे विच अगर मैं सालन रोटी ते डालना है तो मैं प्लेट डाल देसा वो मैंने ये समझ नहीं आती मैं काम मैंने ख्याल किसी और जाता है मैंने ख्याल मैं लकड़ का काम करता पिया मैं को लकड़ दे ख्याल मैं रोटी जो खावन आया तो मैंने रोटी का ख्याल कोई नहीं समझ गया ठीक है और कोई गाल जी ये हुण मेरा अम्मा अब्बा आदन कि तेरे अंदर जिन्नात मेरे रिश्तेदार भी आदन ये गाल तुसी मैं पहले दस छोड़ जी ठीक है कोई और तफसील ऐसी जिहड़ी तुसी मैं दसना चाहते हो कोई चीज अगर मेरे को चंगी लगती है तो वो अब तो मेरे को शामिल नहीं थी अगर मैं कोई चीज मिसाल के तौर मैं कोई मोबाइल मेरे को पसंद है तो मैं अगते घन नहीं सकता जो अगर घन भी सकता तो वो मेरे दिमाग दे विच लोग आदन तक कि मोबाइल ठीक होए ठीक अच्छा मैं जरा थोड़ी जी तफसील जोड़ जाना चाहना ये दसाओ मेरे को कि तुसी केड़ा जमाना तुहानू याद होए सी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਫੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਸਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ अच्छा अच्छा यानी 4 साल पहले तक तुसी बिल्कुल ठीक ठाक जी जी ठीक ठाक जी ते कितने साल जिंदगी दे तुसी बिल्कुल ठीक रहे हो 4 साल तो पिछले हां कितने साल उस तो पहले दे उस तो पहले नहीं याद मैंने कोई चीज याद है कोई अच्छा अच्छा पता नहीं याद ही नहीं ठीक लेकिन 4 साल दन हो गए ने इस कैफी दी जड़ियां तुसी जी जी जड़ियां डाडियां मुश्किल तकलीफां जड़ियां एदे तुसी ज्यादा महसूस करदे अच्छा ये दसो ये जड़ियां तकलीफां तुसी दसियां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਾ ਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ मुश्किलें बहु हैं जितो काम करना पैना नहीं तो मैं घर बैठ कौन आ जाता कोई ठीक नहीं जाता ठीक बिल्कुल ठीक है अच्छा ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਾਈਆਂ ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ? जी जी दिल तो यही करते हैं कि शादी पहले करनी ना, शादी करो बेहतर आसानी जिंदगी शादी करो पहले ਇੱਕ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆ जी शादी करन नाल 100 जिम्मेवारियां सिर पे आ गई। ठीक है, बीवी का कपड़ा है तो अपना कपड़ा कोई नहीं, जो अपना कपड़ा है तो बीवी का कपड़ा कोई नहीं। ठीक, मैं गल ये पूछना पिया सा, मैं शायद अपनी गल तुहानू पूरी तरह पहुंचा नहीं सकिया। गल मैं ये पूछ रहा सा कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? जी नींदर ते असर पौंदा है की रात ਨੂੰ अगर मैं दिन ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। अच्छा, ਸੁਬਾਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਸੋ ਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮਗਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ? ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਸਮਝ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠਾ ਥਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋ, ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਫਸੀਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬੜਬੜਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਝ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਲਾ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਇਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਚਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, और ये आवाज मैनू नहीं आएगी, सिर्फ तानू आएगी। मैनू आएगी। ये आवाज तानू मुखातिब हो के ताड़न रेंज गल के होंदी पई है, जिस तरह मैं ऐसे ले
जी आमने सामने जिस तरह गल करदे ना बंदा इस तरह मैनू लगदा है कि मेरे नाल गल हो गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆ? ਜੀ ਜੀ इसी टाइम भूख लगती है लाड जल कर 6-6 7-7 रोटियां खाऊं। हाँ ठीक। और किसी टाइम भूख लगती भी नहीं। अच्छा, और तारे वजन पे भी कोई असर पिया? जी पहले वजन जब मैंने भूख लगे ना वजन मेरा वध पैंदा। हां फिर जिस्म के अंदर फुर्ती आ वेंदी है, समझो ताकत आ वेंदी है। दिल करदे कि एक काम जो खत्म हो गया ना दिल करदे सारा काम करदा है। जब मेरी भूख खत्म हो गई फिर कोई दिल नहीं करता काम करने का। अच्छा, जे मैं बैठ गया तो दिल नहीं करता उठ के कोई काम करना। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੌਰਾਨੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਕਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 दिन हो गए। ज्यादा तो ज्यादा कितना तुसी देखिया? ज्यादा तो ज्यादा हो जासी तकरीबन 2 हफ्ते हो जा संभव। ये कोई ज्यादा ते घट तो घट 4 ਤੋਂ 5 दिन। 4 ਤੋਂ 5 ठीक। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਆਹਿਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ रहती है? ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਗੁਜ਼ਰ? ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਫੁਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਨਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਫੀਅਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਕੀ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਅਕੇਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ, ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ लगते कि मैं समझ ठीक। फिर उसे सारे माँ बाप को छोड़ के मेरे को आई जाती है।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਿਗਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਯਾਰ बैठे ने। जी जी, दोस्त फिर अगर तंग कर देंगे, जिस तरह कोई संगत बैठी है कि 4-5 बंदे आए बैठे हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ओके यार पी ले की होगा, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ फिर उसकी सूटा मूटा ला लेंगे। जी, ਸੂਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं सूटे फिर वो जिस तरह ਹੁਣ संगत चंगी है तो चंगा सूटा है, संगत माड़ी है तो माड़ा सूटा है। माड़े सूटे तो की मुराद है? माड़े सूटे पे मुराद है कोई शराब पी लेंदा, कोई चरस पी लेंदा, कोई पाउडर पी लेंदा। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਂਸ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। मेरा सवाल समझ आया? फिर तो समझ। अच्छा, मैं उर्दू भी दसना, सराइकी भी दसना, ठीक है, कि जब आप बिल्कुल सेहतमंद थे उस जमाने में ये संगत, ये दोस्त थे जो कि आपको चरस का सूटा लगवा देते हैं, उस जमाने की बात है। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है, दूसरी ये कि आप बीमार हो गए, 3-4 साल जो गुजरे हैं इसमें जिन्नात भी आ गए, सारा कुछ होने लगा, तो फिर उसके बाद आप इतने तंग हुए कि आप ऐसे दोस्तों में बैठने लगे जो आपको सूटा लगवा रहे चरस का। चरस का सूटा पहले हुआ या बीमारी पहले हुई? चरस का सूटा बीमारी के अंदर हुआ। अच्छा, यानी जब आप हो गए जी तो फिर उसके बाद हुआ। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। फिर आप जब दोस्तों के साथ बैठते थे, जी जी, तो ठीक हो, ठीक। इसकी फिर तफसील और भी ज्यादा हम इसके बारे में जब दोस्त आके बैठ जाए, हाँ, तो फिर जाके दिल कहते हैं इसके साथ। अच्छा, एक दो चीजें और पूछना चाहता हूँ बड़ी जरूरी। आपको कोई जिस्मानी मेडिकल बीमारी, मसलन जिस तरह होता है ना, बाज़ खानदानों में शुगर, ब्लड प्रेशर चल रहा होता है जी, आपके खानदान में किसी किस्म की कोई बीमारी हो, आपको कोई पहले बीमारी हुई हो इस तकलीफ से पहले? इस तकलीफ से पहले बस बुखार होता था। बुखार होता था जी, बस ये कोई ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे शुगर हो, लंबा बुखार जो कि जिससे है ना दिमाग को चढ़ गया बुखार, दिमाग का बुखार हो गया, या कोई सरसाम हो गया, इस तरह की? नहीं सरसाम नहीं हुआ, ते इधर मलेरिया ते टाइफाइड ਇਹ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, शादी को पहले, ठीक। ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਟਾਈਫਾइड बुखार ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼? ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ हुआ होगा। ठीक, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜੀ ਬੁਖਾਰ। ਬਗੈਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਏ? ਬਗੈਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ? ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, इंसान की बचपन जिंदगी कई वाकयात होंगे ना, बात का जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद हो गया, किसी ने जबरदस्ती कर ली, किसी ने गाली गलौज मार पीट कर दी थी, घर वाले आने बाहर वाले, वो साढ़े से बड़े जरूरी वाकयात होंगे। अच्छा, ठीक है, ते वो बाज़ औकात बंदा पहली मुलाकात नहीं भी जिक्र करता, तुसीं अपने ज़हन च रखना कि डॉक्टर ने मैनूं इहदा जिक्र कीता सी, ते जदों भी मैनूं मिलो तां लगे कि अज मैं गल कर सकना इस बारे ते मेरे नाल जरूर कर लेना। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, हूँ मैं एक दो चीज़ां तुहाडे कोलों होर पुछना चाहना, वो भी बड़ियां जरूरी हैं।
ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਵਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਨਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਜਨਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਨੇ, ਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਨੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਇੰਸੀ ਕੋਈ ਤੌਜੀਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਹਿਮ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਨਾਤ ਚ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ, यानी कि मेरी गल दा आलम दी गल मेरे ऊते बुखार मैनू है तो मैनू पता लग सी ना कि मैनू बुखार। बिल्कुल ठीक, ठीक समझ आ गई। आलम नु की पता लग सी कि उन्हें बुखार है जब मैनू बुखार है, ये गल ये जिनात मैनू है ना। हां तो मैनू पता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये जेडी कैफियत तुसीं दसियां ने, इहदे नाल तेरी याददाश्त ते कोई असर नहीं पिया? मसलन मैं तुहानू पूछांगा अज की तारीख है, अजकल वाकयात की होंदे पए ने, मुल्क विच की चीज़ां होंदियां पियां ने, इहदे बारे च कोई चीज याद होती है, कोई चीज नहीं याद। ठीक ठीक। मसलन आज तारीख की है? सोचना पड़ता है, फिर याद आ जाती है। 27 तारीख है। 27 ठीक। महीना 7वां है। ये केड़ी जगह ते बैठे हो तुसीं? अस्पताल बैठे हैं। अच्छा अस्पताल बैठे। ठीक ठीक। ये लेके कौन आया सी तन्नू नाल? नाल मेरा वो कजन लेके आया सी। मेरे को तो बेगम साहब अंदर आए थे। जी जी, वो साथ में उनके डॉक्टर साहब से। अच्छा जी जी, वो बेगम साहब जी जी, वो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर से। वो खुद डॉक्टर, वो हमें लेकर आया। उनके पास आप काम करते हैं? जी 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 जी, उनके साथ। ठीक ठीक। तो आप हिसाब किताब कर लेते हैं पैसों का? जी जी, गिनती इंग्लिश पे कर लेना। अच्छा, बाकी उस तरह नहीं, जिस तरह दिमाग, जिस तरह तेज दिमाग का दिमाग में कर लेना। अच्छा, मैं इंग्लिश ते एक दो इस तरह कर लेना। ठीक ठीक। तो ये मिसाल के तौर पे मैं वेखन वास्ते कि ताड़ी गल ते पूरी तवज्जो रहंदी कि नहीं, ठीक है। मैं एक तानू टेस्ट देना, ठीक है, तुसी जो के हिसाब कर लेंदे हो, ते ओ तुसी टेस्ट अगर मेरे नाल कर लवो तो मेनू पता लग जाएगा कि ताड़ी तवज्जो मेरी गल ते रहंदी है कि नहीं। मसलन मैं तानू कहां कि हफ्ते दे दिन जेड़े ना उल्टे गिनने शुरू कर दे, मसलन इतवार तो शुरू करके पीछे नहीं, एक तो ना इतवार तो पीर तो मंगल, एक इतवार तो पीछे गिनना शुरू कर दो। गिन सकते आदत ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕਿਕ में कहना। चलो अच्छा सराइकी दिशा आदत छान छान जुम्मा खमीस बुध मंगल सोमवार। ठीक है ठीक है। अच्छा ये दसो कि ये जी कैफियतां तां होंदियां पियां, इतना की लगता है कि एक कोई इलाज की जरूरत है सारे मसले में? जी जी, इलाज की जरूरत है जी। कोई इलाज तो कई डॉक्टर कहते हैं, कोई जिस्मानी इलाज करेंगे, कोई दिमागी इलाज करेंगे, किस तरह डॉक्टर को जाना चाहिए? मैनू तो इंज लगता है किसी दिमाग का डॉक्टर। ठीक बिल्कुल ठीक। अगर वो इलाज करे तो ठीक भी होवे सो इंशाल्लाह, जेडी तन दवाई दे सन उसी दवाई भी खा सो इंशाल्लाह। ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी गल है। वो ਅਸੀਂ थोड़ी जी गुफ्तगू जी ना वो बेगम साहब नाल भी करनी चाहते हैं, क्योंकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ रोज देखते हैं ना उसके कैफियत। जी जी ठीक है जी। ते ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तेरी बीमारी के बारे में दसना होनी, ठीक जी। ते बेगम साहब बुला लिए जी ਤੁਹਾਡੀ इजाजत नाल, जो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं गलबात करा, ਤੁਹਾਡੀ इजाजत है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा तो नहीं लगेगा या ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कि भी नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर सकते?
ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਹੈ? ਜੀ, ਜੀ, ਕਰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਚਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। जी डॉक्टर साहब, जी how was it? Did he tell you everything? जी बस पहली मुलाकात है आज Okay. उनसे गुफ्तगू हुई हमारी। All right. आरिफ साहब ने बहुत हमारे साथ ताउन किया, Okay, पूरी great. तफसील मुझे बताई उनकी तफसीलात की। ये तुसी बैठ के ना देर गिर कागज में लिखी है दाड़ियां चीज़ां एक दफा उन्हें देर तुसी पढ़ लो बेगम साहब ने बात करना पे ठीक है जी, तो he was very cooperative. He talked to me a lot of things. जो चीज़ें हैं वो फिर मैं इनको दे भी दी हैं कि वो दे भी पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। आप अगर कुछ चीज़ें मुझे बताना चाहते हो जो कि बहुत ज़रूरी लगती हैं आपको इनकी कैफियत से, ये कितना पुराना आपके साथ इनका राब्ता है, काम कर रहे हैं आपके? 8 महीने हो गए हैं अब जी इनको हमारे साथ। तो पहले तो आई डिडंट नोटिस, मुझे लगा कि ये बहुत ऑड है and that's just because of the language barrier. You see, I don't speak too much Urdu and then he also doesn't speak too much Urdu, he speaks Saraiki, so I thought that was the language barrier that we were experiencing. As you know, Dr. we don't speak that much Urdu, so I thought that was the problem. But later on I used to see him standing, I would get into the room and he'd just be standing there alone by himself, and then I would go into the kitchen, he'd just be standing there with a pot or a pan, and I had told him to clean all the dishes, but he just was standing there all alone, not doing anything. He would just freeze in time, and when you'd ask him, he wouldn't respond in the very first time. Then he'd get very scared, and then he'd run away. So I thought about it. I spoke to my husband, and I thought this is the most responsible thing to do. Bring him in. I think just get clearer picture. Totally understand. Really appreciate your gesture for doing this. Okay. अच्छा जी, बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। असल में आपको पता है, आपने देखा भी होगा बाहर बहुत रश है इस वक्त और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ टाइम इनके साथ ज़्यादा भी लग गया। तो ये असल में जिन बीमारियों का हमारे जहन में आता है जब हम इस तरह की कोई कैफियत मरीज में देखते हैं, so we usually think of admitting them. Okay. उसकी वजह ताकि हम ज़्यादा तफसील से बात कर सकें, can learn a little more about them. हमें कुछ टेस्ट्स भी उनके रन करने पड़ते हैं, वो टेस्ट नफ्सियाती नवियत के भी होते हैं, कुछ जिस्मानी कैफियत के भी होते हैं। तो उसमें एक तो साफ है कि आप इस वक्त इन्हें लेकर आई हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होता है कि इनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, उन्हें नहीं पता हो इस बात का कि अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। और चूँकि इस वक्त इनकी ऐसी कैफियत है जिसमें हम उन बीमारियों के बारे में सोचते हैं जिसमें इंसान को पूरी तरह से अपने अच्छे बुरे की मुकम्मल तमीज़ नहीं भी होती बाज़ कि सही क्या है और गलत क्या है। अगरचे ये उसके इतना करीब नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है, तो फिर हम उनकी फैमिली के लोगों से इजाज़त ज़रूर लेते हैं इस बारे में और उनको ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व भी करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास ये पाकिस्तान में एक मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसके तहत हमें इजाज़त है कि हम कुछ दिनों के लिए इन्हें अस्पताल में रख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हमें इनकी भी इजाज़त की और उनकी फैमिली की इजाज़त की भी ज़रूरत होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उनको ज़रूर आप अगर बुला लें और बुला के फिर हम उनसे इनके बारे में तफसीलात भी जानना चाहेंगे कुछ और उनसे इजाज़त भी तलब करना चाहेंगे। इस दौरान में जो हम ऑब्जर्वेशंस कर ली होंगी वो हम उनके साथ डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या क्या है और क्या किस नतीजे पे हम पहुँचे। You want me to call them immediately? जी, बेहतर तो यही होगा कि अगले 2-3 दिन में, क्योंकि ये बता रहे थे कि सराइकी एरिया से हैं तो उनको टाइम लगेगा वहाँ से आने में, तो अगर आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। अच्छा आरिफ साहब, ये तुझे पढ़ लिया जी? ये जिसको मैं गलत गाल दे नहीं लिखी? नहीं ठीक है, सारा अच्छा ठीक लिखिए। अच्छा बेगम साहब उन्हें थे बैठे रहने सी तो चीज़ां ज़रूरी करनियां चाहने इतने जैसे ये फैसला करना चाहने कि तारी जड़ी कैफियत है उन्हें ज़्यादा समझने वास्ते ज़्यादा टेस्ट करने वास्ते ज़रूरी कुछ ऐसे अस्पताल ही रख ले। तारी इजाज़त है, इन्हें इजाज़त है? उन्हें इजाज़त है? हाँ जी ठीक है, मेरी तारी इजाज़त है। ये जड़ी इजाज़त है ना इतने ऐसी तुसी जो के पढ़े लिखे हो तारी सिग्नेचर भी करा सकते यानी कि तारी साइन करा सकते। कितने दिन रखो वो सी बार फैसले कि शुरू दी सानू इजाज़त
3-4 दिन ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करनी, नहीं, ठीक है ना, तो उन्होंने भी अच्छा जी, तो फिर आप उनको जरा बता दीजिए, ठीक है। मैं जो नतीजे ते पहुंचा ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ तशखीस है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ कैफियत ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ जी, आप बेशक अगर जाना चाहें थोड़ी देर इंतजार कर लें, हम ये कागजी कार्रवाई इनकी मुकम्मल कर लें, फिर आप जी प्लीज तस्वीर हम कंक्लूड कर लें, तो उसके बाद And you want to keep him 3-4 days initially. So I should just then make other arrangements. Maybe that would be a good idea. Okay. Thank you, Doctor. Thank you so much. वो मैं इस करके भेजे क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਏ, ਠੀਕ, ਕੁਝ ਨਫਸੀਆਤੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪਏ, ਠੀਕ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ये केमिकल इस तरह ही होते हैं जिस तरह तुम समझो कि एक गड्डी है, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਗੱਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਲ ਘਟ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਜਵਾਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਖੱਪ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸਮਝੋ, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ एकदम बीमारी थोड़ी समझ आ जाए, ये गल मेरी सब समझ आई ना? जी समझ आ गया मैं। जी क्या है, जिस तरह गड्डी है ना, इंसान भी उस तरह है, इंसान रोटी खाते, पानी पीते तो इंसान अंदर सोचा है, जब इंसान कमजोर हो जाता है तो फिर इंसान दे आवाज़ आ जाती, इंसान दे अंदर गड्डी वाली मिसाल की दी है, जी गड्डी वाली मिसाल इंसान दे मिसाल दी है, वो समझ आई? हाँ जी वो समझ। अच्छा तो ये ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਸੀ ਇਲਾਜ ਜੀ ठीक हो गया। तो मैं अपने स्टाफ में बुलाना, वो तो नाल ले जाए, साइन करा सन, वार्ड च रख सन, ठीक है, फिर अगली कहानी उस तो बात कर सो, ठीक, क्लियर हुई गल? जी ठीक, हाँ ठीक हो, आओ जरा आओ। Okay, ladies and gentlemen. So, very quickly visit the list that you had drawn, and I'll go back to that same document and try and ask you to have a quick look at what all I had done and what all I had not done at all in an outpatient setting. This is the list that I'd initially shown you. And you can see how much was done, how much was not done. And then this was the next.
Now, of course, there will be several aspects that would not be relevant to a particular patient. This is a more generic list of things that need to be done in an outpatient setting. Incidentally, we took about 35 minutes in the interaction, other than the discussion that you and I have had for about 10 or 15 minutes. So we are into the 50th minute of our time. So if we now ask you to open up your mics and talk to us and give your impressions one by one. Now, I would recommend that either you can put your comments on the chat, or you can actually unmute yourself and then make a comment or a query. Please. Over to you all. Feel free. Anybody who wants to make a comment can unmute and then anybody would like to make a comment, ask a question, feel free. Unmute. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बुशरा उस्मान here. Can you hear me? जी, I can. जी. Okay. जी, excellent and very informative और बहुत ज़्यादा हमारा वो renew हुआ है the skills. एक बात समझ में नहीं आई जब आपने सेशन शुरू किया था, तो probably शायद कैमरा की पोजीशन ऐसी है कि clearly नजर नहीं आ रहा था, but for a few moments it seemed like you were looking at your phone, and maybe it gave me this impression that you were ignoring the presence of the client. जी बिल्कुल. असल में ये maybe you were doing something else, but one could not see because of the camera position. Correct me if I'm... जी नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे आपने ऑब्जर्व किया, उसमें कोई भी गलती नहीं है. मैं जरा अगर आपको शेयर स्क्रीन पर दोबारा ले जाऊं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां नजर दौड़ाइएगा. इंट्रोडक्टरी साइलेंस, रेपो बिल्डिंग, ओपनिंग स्टेटमेंट और द होली मिनट. ये वो टाइम था जिस वक्त आपने ये ऑब्जर्वेशन की. चूंकि वी वर नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू इन आवर फर्स्ट सेशन, तो उसमें हमने इसको जरा तफसील से बयान किया था. तो इंशाल्लाह जिस वक्त आपको मौका मिलेगा उसकी रिकॉर्डिंग सुनने का, अगर मिला तो आप उसको लेकिन मैं अभी यहाँ हाईलाइट कर दूं आपकी तसल्ली के लिए कि हम जो पहला मिनट होता है उसमें कोशिश ये करते हैं कि मरीज को खुद एडजस्ट करने का कुछ टाइम दे, जिसमें आप अपना काम कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने मोबाइल को ऑफ किया और उसको एक तरह से मैसेज ये दिया कि देखो मैं अपना मोबाइल ऑफ कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तुम भी ऑफ कर दो. और ताकि उसको इस बात का एहसास भी हो जाए कि एक तो उसको 1 मिनट मिल जाएगा अपने आप को इस कमरे में एडजस्ट करने का, दूसरा उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये आदमी मेरी अहमियत को बहुत ज्यादा अहम समझता है, मेरा यहाँ होना. इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, इसको उठा के वहां सामने बंद करके रख दिया है और अब ये पूरी तरह से मेरे ऊपर तवज्जो दे रहा है. और दूसरा उस वक्त ऐसे काम करने की और भी कोशिश करते हैं जिससे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यानी मैं कागज पेंसिल का बंदोबस्त कर लूं, जो चीजें मुझे बीच में इस्तेमाल करनी है मैं उनका बंदोबस्त कर लूं, और उतनी देर में उसको मौका मिल जाए अपने आप को एक तरह से ओरिएंटेट करने का इस जगह पे. बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो वेस्टर्नाइज्ड क्लिनिक्स हैं, वेस्टर्नाइज्ड तरीक़ेकार हैं, कपड़े हैं, उनसे लोग गाँव का ख़ास तौर पर आदमी जो है ना वो काफ़ी ओवरवेल्म सा हो जाता है. तो उसको वक्त लगता है समझने में कि ये क्या हो रहा है, ये क्या जगह है, किस तरह की जगह है. तो उसको हम वो इनिशियल मौका देते हैं. तो ये मकसद नहीं होना चाहिए उसमें कि मैं इग्नोर करूं उसको, पेशेंट को, लेकिन ये मौका जरूर देना चाहिए कि वो इसमें एडजस्ट करे और मेरी एक्टिविटीज को लिंक अप कर सकता हो कि ये मेरी ही वजह से मेरे लिए हो रही. तो पता नहीं मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ या नहीं. जी बिल्कुल, it's very clear now and obviously it makes all the sense. It's just that कि वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैमरा
I mean, phone off कर रहे हैं या are you just looking at your messages? Probably that's why I got this impression. Sorry. आपको दिखा Sorry देता for हूँ the. जी, तो जस्ट मैंने ऑन कर लिया जी जी शफकत जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर शफाकत अली हूँ, साइकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री यहाँ से, एज यू नो। सर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहा था, जो कि अभी जिस टॉपिक पे अभी बात हो रही थी। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था अपने पेशेंट के साथ। कुछ पेशेंट्स को मैंने जो ही वो मेरे पास एंटर होते सीट पे बैठते, तो मैं उनको अपना जो है ना आई कांटेक्ट उनके साथ मेंटेन कर लेता था। एक ग्रुप ये था। दूसरा ग्रुप ये था, जो ही वो आके बैठते, उनका सिटिंग पोस्चर तक मैं नहीं देखता था वो किस तरह बैठे हैं। मैं अपने डायरी को ओपन करता, पेन को पकड़ता, इधर उधर देखता, सो दैट कि वो थोड़ी देर में वो रिलैक्स हो जाता, और उसके बाद मैं उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करता। दोनों में मैंने जब रेपो बिल्डिंग, तो मैंने देखा कि रेपो किसके साथ ज़्यादा अच्छी बनती थी। उसके साथ बहुत अच्छी रेपो बिल्ड हो रही थी, जिसको मैं पहले एडजस्ट होने का मौका देता था और अपने आप को मैं इधर उधर इन्वॉल्व करता था, और वो पूरे मेरे जो ऑफिस है इसको देख लेता था कि ये क्या है, चेयर्स कैसी हैं, ये खुद कैसा है, इधर उधर वो अपनी नजरें ऐसे घुमा लेता था। ठीक, शुक्रिया। आप वही बात कह रहे हैं जो हमने अभी हाईलाइट किया। बहुत शुक्रिया आपकी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक हमारे पास जब हम अभी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों का कमेंट का सवाल व जवाब का, तो एक हमारे पास कमेंट आया। इन सम एरियाज, आलिया साहिबा हैं, in some areas psychiatrists are advised to keep certain objects away from the patient like pen, examination tools, etc. What should we do? बिल्कुल सही है जी। अगर आप देखेंगे एक पेशेंट को 4 लोग पकड़ के लेकर आए हैं और वो एब्यूसिव एग्रेसिव है, और आपने विजुअलाइज किया है उसको कि वो पोटेंशियली एक डेंजरस पेशेंट है, यानी वो हार्म कर सकता है अपने आप को भी और मुझे भी, तो उसमें ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे मौका मिल गया था फैमिली के बंदे से जो कि जिनके पास वो एम्प्लॉयड, उन्होंने थोड़ा सा बता भी दिया था, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। फिर जब मैं उसको लेकर आया अंदर और उससे बात करनी शुरू की, तो फिर भी मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कोई बहुत पोटेंशियली वायलेंट इंसान है। तो फिर तो हम ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर ये इस तरह की चीज़ें वो रख सकते हैं सामने। लेकिन अगर हमें पोटेंशियली वायलेंट या ऐसा इंसान जो कि अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है, तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि उन ऑब्जेक्ट्स को आप मरीज से दूर रखना जरूरी होता है। बल्कि उस वक्त ये भी जरूरी होता है कि आप पेशेंट के साथ अकेले ना हो, और one of your staff members should be maintaining a certain distance, and it is also useful that in that situation you place the patient away from this one arm distance and probably cross the table as well. So your personal safety is probably takes precedence or everything else that you would ever do as a mental health professional. Your safety first. Take all the measures that you should, and repo and everything. अच्छा, एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन और जिस पर मुझे इम्तिहान में बाकायदा फेल भी किया जा सकता है, वो है कि नो फिजिकल एग्जामिनेशन वाज डन। बिल्कुल सही बात है, और ये एक चले मैं तो लिबर्टी ले सकता हूँ, मैंने ये बात एक्चुअली जान के की ताकि आप इसको जरूर जज कर सकें कि मिस किया है हमने फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का। वेरी वेल पिक्ड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरटेक अ फिजिकल एग्जामिनेशन in a patient, particularly with the kind of history जो उनकी है, जहाँ पर जिस्मानी बीमारियों का भी जिक्र हुआ है, बुखार का भी जिक्र हुआ है, टेम्परेचर भी लेना उनका जरूरी हो गया, वगैरह वगैरह। तो even in outpatient settings with all these gadgets around me, I should have undertaken a physical examination. Very well done. और इसके अंदर मैं यहाँ ये भी हाईलाइट कर दूं कि जो मिनिमम एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है वो वाइटल साइंस का है। वाइटल साइंस होने चाहिए थे उनकी, चूंकि मुझे अंदाजा है कि ये वाली जो कैफियत में जिसमें उन्होंने एक अनकॉन्शियसनेस के फिट का भी जिक्र किया है, बुखार का भी जिक्र किया है, तो उनकी ऑफ्थेल्मोलॉजिकल evaluation or examination, I might get away with it because of the fact कि एक आउटपेशेंट असेसमेंट है जहां पर मैं मरीज को दाखिल कर लिया, तो अब मैं दाखिले में जाकर ये सारे सब काम करने लगूंगा। लेकिन अगर मैंने इसको फारिग कर दिया होता अस्पताल से, घर भेज दिया होता बगैर फिजिकल एग्जामिनेशन के, तो फिर मैं बाकायदा तौर पे इम्तिहान की सेटिंग में फेल हो सकता हूँ,
और यहाँ मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मरीज के सिलसिले में मैं उसको नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा कि मैंने मिस कर दिया उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कि उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैं कमेंट्स पढ़ता चला जाऊंगा इस दौरान में, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो वो आप जरूर कर लीजिए। जी कोई कमेंट नहीं है तो एक हमारे पास चैट में बहुत अच्छा की ऑब्जर्वेशन आई है कि आपने देखा होगा कि मैं उनके नोट्स बना रहा था यहाँ पर, और जो चीजें वो बोल रहे थे उनको लिख रहा था। मेरी आप पूछा ये गया कि अगर वहां पर आप अपने नोट्स बनाते हुए डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस वगैरह लिख देंगे तो मरीज जो है वो सकता है ऑफेंड हो जाए। तो साफ जाहिर है कि आपको इस बात का एहतमाम करना है कि जो चीजें आप लिख रहे हैं पेशेंट के वर्बेटम लिखें। जो आप क्लिनिकल नोट्स वार्ड में बनाएंगे विच आर कॉन्फिडेंशियल नोट्स दैट वुड ट्रेवल बिटवीन अ कंसल्टेंट एंड यू, और ट्रेवल बिटवीन टू डॉक्टर्स, उसके अंदर यू कैन यूज दीज टर्म्स। बट जब मैं लिख रहा हूँ आपको शायद ज़हन में हो, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं बातें उस तरह से लिखूंगा जिस तरह से आपने बोली हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो ये आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने उनकी बातें, तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जहां जिससे वो ऑफेंड हो जाए या उन्होंने नहीं कही। तो बिल्कुल सही है, डोंट पुट योर जजमेंट्स ऑन द पेपर एंड देन आस्क द पेशेंट टू परूज थ्रू देम। That may not be a very sensible thing to do. जो आपने लिखा है वो जरूर, ये मैं इसलिए आपको, बहुत जरूरी कंपोनेंट है ये कि बाज़ औक़ात मरीजों ने कई दफा डॉक्टर को चेक किया जी कि जनाब ये जो बात आपने लिखी हुई है ना, ये मैंने ऐसा कही नहीं, या मेरा ये मतलब ही नहीं था जो आपने लिखा हो। And it can change the diagnosis completely and lead you into a realm of psychopathology wrongly or sometimes rightly. So it's a very, very useful exercise to have to actually ask the patient, particularly अगर वो पढ़ सकता है, बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर पढ़ नहीं सकता तो फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए कि हमारे यहाँ होता नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि मरीज से ये कहिए जरूर। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब एक डायग्राम बनाया तो मैंने उनसे कहा अच्छा आप बताओ आपको क्या समझ आया। आपने देखा कि वो बिल्कुल ही और ही तरफ निकल गया था पहले, फिर मैं उसको वापस उधर लेकर आया, अच्छा तुम्हें वो बात उस तरह से समझ आई इस तरह मैंने ये कहा। उससे दो चीजें होती है, एक तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में उसकी कॉम्प्रिहेंशन समझ आ जाती है आपको, उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग आप कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डूइंग दिस लिटिल थिंग, जो कि अदरवाइज फिर आपको करते हुए बड़ा वो जी मुहावरे सुनाओ जी, आपको कौन सा मुहावरा पसंद है, मुहावरा नेकी का दरिया में डालो। इतनी दरिया में आजकल नेकियां तैर रही हैं जब से डॉक्टरों ने ये टेस्ट करना शुरू किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, बल्कि अब सिर्फ दरियाओं में ही तैर रही हैं, बाहर तो नजर नहीं आती। ज्यादातर हमारी डुबोई हुई वो नेकियां हैं जो कि दरियाओं में तैर रही हैं मरीजों के साथ इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप उनकी कॉम्प्रिहेंशन और उनकी एक तरह से कॉन्क्रीट थिंकिंग को असेस कर सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस का टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। सो यू हैव टू मिक्स अप थिंग्स, समटाइम्स नॉट दैट कन्वेंशनली but usefully done, intelligently done, they can become a source of great information for you. अच्छा, ये एक अच्छा सवाल आया डॉक्टर सरमत मुश्ताक साहब ने पूछा है कि should we ask the patient in the start of the conversation which language you understand and you speak best. मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि patient should be made to speak in the language that he best understands. However, there are limitations. देखिए मेरी ज़ाती लिमिटेशन है, मैंने जितनी बुरी सराइकी बोली है, शायद से आप लोग सब, डॉक्टर सरमत साहब, डॉक्टर बुरहान साहब, ये मुझे बहुत डांटेंगे, ये कौन सी सराइकी आप बोल रहे थे। तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपको ऑफेंड किया, लेकिन ये कि ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कितना उसके करीब जा सकेंगे साइकोपैथोलॉजी के, अगर आप उसकी लैंग्वेज बोलें मरीज, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बड़ा मिलता है इस बात से। अब वो जो बेगम साहब आपने देखी थी, वो तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही वो अभी लैंड की थी थोड़ी देर, आधा घंटा पहले इंग्लैंड से। तो वो मतलब एकदम एट होम फील करेगा अगर कोई आदमी उसकी लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू में ही मरीज को आप चांस दें कि वो अपनी बातचीत आपसे अपनी लैंग्वेज में करे, इफ इट इज पॉसिबल। ऑब्वियसली देयर आर अदर सिचुएशंस वेयर यू वुड हैव टू मेक एन एक्सेप्शन and
एक और सिनारियो यहाँ पर मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं आपको हाईलाइट करूँ। ये बाज़ होता है कि मरीज अकेले में आपसे जो बात करना चाहता है वो उस जबान को नहीं जानता जो आपको आती है, ज़बान यार मन तुर्की नमी दाना। तो वो सिचुएशन अलग है, वहां पर फिर आपको ऑब्वियसली ट्रांसलेटर चाहिए और एक घर का फर्क चाहिए जो उसको ट्रांसलेट करे उर्दू में। बहरहाल प्रेफरेबल ये है कि मरीज की लैंग्वेज में उससे बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए और अपनी बात भी उसी लैंग्वेज में समझाई जाए। जी, एनीबडी वुड लाइक टू मेक अ कमेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी डॉक्टर जुबैर साहब। अच्छा सर, एक बात आपसे ये पूछनी थी कि पेशेंट की मौजूदगी में मोबाइल का यूज करना ये कैसा है, जबकि आप यूज भी पेशेंट के लिए ही कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक दो पेशेंट को एवेलुएट करके डायग्नोसिस बनाकर मैं बैठ गया, मैं उसकी मैनेजमेंट देख रहा था मोबाइल से या प्लान खोल के, वो आगे से बोल पड़ा डॉक्टर साहब अगर आप मोबाइल यूज करना है तो मैं उठ के चला जाता हूँ। तो ये क्या सिनेरियो, इसमें हमें क्या करना, मतलब मुझे सारा कुछ याद तो नहीं है ना, समटाइम्स आई नीड हेल्प। हम सब के लिए एजुकेशनल होगा कि आपने उसको क्या जवाब दिया? मैंने सर उसे जवाब ये दिया कि सर मैं आपके ही काम के लिए मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल उसे दिखा दिया फिर। हाँ बहुत अच्छा। मैं सिर्फ इतना बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि मैं उससे ये काम पहले कर लूँ जो आपने आखिर में किया ना, उसके बाद मैं उससे पहले कह दूंगा कि देखिए आपकी मैनेजमेंट के हवाले से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर वो मैनेजमेंट देख लूं, या उसको बता दें कि भाई मैं मैनेजमेंट देखना चाह रहा हूं आपकी बीमारी की, बाद में भी तो बताया, ये बात पहले करें। असल में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जनरली अपने मरीजों के बारे में जो एटीट्यूड है ना, वो काफी वर्टिकल है, जहां मरीज इधर है और हम इधर है। हम नफ्सियाती तौर पर उनको अपने सामने ऐसे देखते ही नहीं, बराबरी की सतह पर नहीं देखते। इसलिए वो काम जो मैं और आप एक दूसरे के साथ करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मैं अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे हूँ, साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, तो हम यहाँ बराबरी की सतह पर बैठे हैं। इस तरह हम एक दूसरे से बात करें, मैं इस तरह कर लूँ, मैं आपसे इस तरह कर लूँगा, पूछ के करूंगा जो भी करूंगा आपसे, अगर आपसे मुतालिक है पूछूंगा आपसे। लेकिन मरीज को समहाउ हमारी कैफियत वर्टिकल है, उसको हम समझते हैं कि इसको समझ जाना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसके फायदे में। जी सर। तो ये समझ जाने की कैफियत ये डॉक्टरों और सियासतदानों में बहुत ज्यादा होती है कि लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम उनके फायदे के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच मेंटली है हमारी। We just assume that they are our subjects and therefore whatever we do ought to be, must be known to them that it is for their benefit. बेहतर ये है कि ऐसे रखें और उससे पूछते हैं, उसी के बारे में तो है। कौन सा मरीज कहेगा कि नहीं जी आपने नहीं देखना मोबाइल, तो कर ले, इस तरह कर ले। आपने बिल्कुल ठीक किया, सिर्फ ये कि जो काम बाद में किया उसको पहले कर लेना चाहिए मेरी नजर में। दूसरी तरफ जो आपने किया वो भी कोई गलत नहीं था, बता ही दिया आपने, उसको बहुत अच्छा किया। अंदाजा नहीं था ना सर कि पेशेंट ऐसा करेगा, वो भी आपकी बात की तरह। मैंने वही अर्ज किया, सोचते नहीं हम इस तरह से। जी, anything else? Sir, I would like to add something कि आपने इंटरप्रेटर की बात की कि लेकिन हमें जहाँ तक गाइडलाइंस का आइडिया है वो तो ये बताते हैं कि इंटरप्रेटर जो है दैट शुड बी समबडी हु इज ऑब्जेक्टिव एंड नॉट अ फैमिली मेंबर। तो अगर वो पॉसिबल है तो वो मेरे हिसाब से तो उसको होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू नो फैमिली मेंबर्स कैन हैव वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये वो आपने ये बात की ना गाइडलाइंस वाली, तो मुझे एकदम याद आया कि बहुत पुरानी बात है। एक वाक्य छोटा सा सिर्फ आपकी तफन्ने तबा के लिए मैं अर्ज कर दूं। मेरे एक दोस्त आए, कहने लगे कि यार सादा थे, थोड़े से पुरानी बात कर रहा हूँ, सादा तबीयत के आदमी थे, गाड़ी ली उन्होंने। तो गाड़ी ली तो गाड़ी में पुरानी गाड़ी थी जो उन्होंने ली, तो जो गाड़ी में चूंकि उनके पास ना वो इंस्ट्रक्शन बुक नहीं थी, तो उन्होंने किसी दूसरे दोस्त से कहा कि मैं बस इंस्ट्रक्शन बुक अगर गाड़ी की वो मेरे वाले में तो नहीं। तो इंस्ट्रक्शन बुक जो थी वो एक्चुअली जो उनको दी गई वो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी की थी और इन्होंने खरीदी थी राइट हैंड ड्राइव। तो उसमें लिखा था, पता है जो इंस्ट्रक्शन लिखने वाले उनका भी जवाब नहीं, वो इतनी तफसील में जाते हैं कि उन्होंने कहा कि गो टू द लेफ्ट ऑफ द कार एंड ओपन द डोर एंड देन गेट इन।
तो अब वो यही करते थे कि वो हर दफा जाते थे लेफ्ट ऑफ द कार पे, जाके दरवाजा खोलते थे, उसमें बैठते थे, कहते थे नाउ स्टार्ट द कार। तो वो साफ ज़ाहिर है कि तो इग्निशन बिल्कुल दूसरी तरफ था। तो वो फिर जब तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि यार ये बड़ी मुसीबत है, इस गाड़ी को लेफ्ट से जाके स्टार्ट करना पड़ता है। ये जो गाइड बुक्स होती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये जरा सा ये देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं, कौन सी जगह है जिसका जिक्र हो रहा है, गाइडलाइंस बनी कहाँ है, उनको प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं। तो बाल का लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों की गाइडलाइंस लेकर राइट हैंड गाड़ियों में उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। मैं इसलिए गाइडलाइन में बिल्कुल सारी बातें गाड़ी के बारे में ठीक लिखी हुई थी, सिर्फ जरा क्योंकि वो गलत दरवाजे से एंटर हो रहे थे उसके अंदर, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाइडलाइंस को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है अपनी सिचुएशन में। सिचुएशन को गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं मॉडिफाई करने की जरूरत। सो प्लीज we trust your judgment when you do that. आप मुझे बताइए कौन आदमी होगा जो न्यूट्रल आप ढूंढ के लाएंगे मरीज को इंटरप्रेट। मैं कहाँ से लाऊंगा इस आदमी की सराइकी ज़बान को समझने के लिए, अगर मुझे नहीं आती तो who would be available? जिन जगहों का ये जिक्र कर रहे हैं वहां पर एक्चुअली हॉस्पिटल्स पे टू इंटरप्रेटर्स, उनके पास लिस्ट है इंटरप्रेटर्स की जो अवेलेबल होते हैं। वो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं जिनकी हाँ इससे ये गाइडलाइंस आई हुई हैं जिनका आप जिक्र करें। सो इफ यू कैन अरेंज दैट, excellent, do it. But if you do not have it, don't have to bother too much about these guidelines in that sense, क्योंकि स्पिरिट समझ जाएं क्या है उस गाइडलाइन, स्पिरिट को इम्प्लीमेंट कर ली, जहां पॉसिबल होगा हम कर लें, नहीं होगा तो फिर कोई मसला नहीं है। फैमिली के लोगों से हमें बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा अगर आप शुरू में कि हमने खातून को मौका नहीं दिया कि वो हमें एजुकेट कर सके मरीज के बारे में पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डोंट है जो मैं अभी आखिर में आपको दोबारा दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है जी सर माय क्वेश्चन इज कि व्हेन यू वर चेकिंग द इनसाइट ऑफ द पेशेंट, तो आपने उसका ना थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान उससे स्टार्ट किया कि डू यू थिंक कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर ये कि मेंटल उसमें ज़रूरत है या फिर फिज़िकल उसमें ज़रूरत है। तो डोंट वी रियली स्टार्ट ऑफ बाय चेकिंग कि आपको क्या लगता है कि आप बीमार हैं, और क्योंकि जब व्हेन द पेशेंट इज़ लाइक कि मैं आई एम पोजेस्ड बाय जिन्स लाइक इन दिस केस, तो फिर हम क्या ऑटोमेटिकली ये नहीं समझेंगे कि उसकी इनसाइट नहीं है, और इस पे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि पेशेंट जो है वो ही वांट्स अ ट्रीटमेंट फॉर द मेंटल इलनेस बट ही थिंक्स कि मुझे कोई पोजेशन है बाय द जिन्स, तो वो थोड़ा ट्रिकी होगा। ओके अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये जो आपने कहा। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में बाज लोग ये करना शुरू कर देते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें हिस्ट्री से मिल चुकी होती है, उन्हें पता होता है हिस्ट्री में, और वो बारहा डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी होती है। हिस्ट्री लेते हुए बातचीत करते हुए उन्हें पता लग चुका होता है, फिर भी वो सवाल मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में चूंकि उनके दिमाग में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के अलग-अलग खाने हैं ना, तो वो उसको मतलब वो दोबारा से पूछना अपना फर्ज समझते हैं। तो ये नहीं है मकसद। अगर एक इंफॉर्मेशन बता चुका है, एक आदमी ने कहा कि जी आपके पास आके कि मैं 1.25 घंटे से बाहर बैठा इंतजार कर रहा हूँ, मैं 9 बजे आया था और अब देखिए 11:30 बज गए हैं, 11:15 हो गए हैं, तो मुझे आपने अब बुलाया है। तो बाद में जब वो शिकवा कर ले, थोड़ी देर में उसे पूछूंगा आपके ख्याल में क्या टाइम हुआ है, तो आप मुझे काफी नादान समझेंगे, आप कहेंगे मतलब हद ही होगी डॉक्टर साहब, उसने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैं इतने बजे आया था, इतने घंटे मैंने इंतजार किया है और अब इतना टाइम हो गया। आप थोड़ी देर के बाद उससे यही सवाल पूछ रहे हैं भैया क्या टाइम हुआ है। तो ना सिर्फ कि मरीज आपके बारे में कुछ तरह की राय कायम करेगा, खुद आप भी बड़े राय मेरे बारे में कायम करेंगे। तो कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड हैं। ऑब्वियसली वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठ के हिस्ट्री दे रहा है, उसको बता रहा है, तो वो इस बात को समझता है कि ये इलाज भी मुमकिन है, मेंटल इलनेस के डॉक्टर्स करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये महसूस होता है, ऐसा करना चाहिए। हम जा चुके हैं पीर साहब के पास, हम तावीज ले चुके हैं, जो शायद हम हिस्ट्री लेंगे तो ये भी कर चुका होगा, बेहतर नहीं हुए। अब पीर साहब ने कहा है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले इसके इलाज के लिए। तो डोंट थिंक दैट अगर उसने ये कह दिया है कि उसके साथ उसके अंदर जिन्नात हैं, तो उसका ये मतलब है कि ही इज नाउ
having no insight at all. वो जो सवाल मैंने किए थे उनके जवाबात डिटरमिन करेंगे whether he's got an insight or not. Let us not assume that automatically, since he has said कि उसको जिन्नात हैं इसलिए उसको insight नहीं. अच्छा जी, एक और सवाल है जवेरिया जावेद साहिबा का. In previous days, I saw patient age 50 years old. After 15 minutes of investigation of symptoms, still I need to apply BDI for more accurate diagnosis. And all this I spend almost 30 minutes. So here my question is, in OPD, sometimes it's quite difficult to give 30 minutes to every patient. To which areas should we focus firstly? And what's about testing if we need? Testing, मेरी request ये होगी कि OPDs में unless कि आप सिर्फ टेस्टिंग का ही एक साइकोमेट्रिक लैब आपने बनाया हुआ है और वहाँ पर पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आप उनके टेस्ट रन करते हैं. We recommend tests to be done for patients who are indoor. Unless you have an OPD psychometric lab running, जहाँ पर आप बैठ के यही काम कर रहे हैं, लैब के तौर पर काम करें. These tests should ideally be done for patients who are admitted. जी जनाब, if there is, how many patients should be assessed in OPD in single day? Who am I to tell you that? ये जनाब डॉक्टर लाकेश खत्री साहब, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि एक नए पेशेंट को आपको 30 से 40 मिनट जरूर लग जाते हैं असेस करने में ओपीडी में. नए मरीज को उसको 5-10 मिनट में फारिग करने की कोशिश ना कीजिएगा. अगर आपने किया तो आप नुकसान उठाएंगे, उसके लिए जरूर टाइम निकालिए. हाँ, हमने पिछली दफा आप नहीं थे तो ये जिक्र किया था कि ओपीडी में कितनी मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन चूंकि हमने उनको एक लंबी लाइन में खड़ा किया हुआ होता है और वहां पर वो पेशेंट जिसने सिर्फ आके आपसे दवाई लेनी है वो भी लाइन में खड़ा होता है और न्यू पेशेंट भी लाइन में खड़ा होता है, इमरजेंसी जिसको है वो भी लाइन में खड़ा होता है 88वें नंबर पे. तो ये हमने पिछली दफा कॉन्सेप्ट दिया था. आप अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि ओपीडी में ट्रियाज होना चाहिए. डॉक्टर को और स्टाफ को मिलकर ट्रियाज करना चाहिए ओपीडी का. और उस ट्रियाज का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट्स नए हैं जिनको फौरी तवज्जो की जरूरत है उनको पहले देखा जाए, और वो लोग जिन्हें कंटिन्यू ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिनको फॉलोअप में थोड़ी सी देर की कंसल्टेशन की जरूरत, उनके लिए एक अलग से क्लिनिक भी मौजूद हो. सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप नए मरीज को देखें उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ टाइम देकर देखें. प्लीज उनके साथ ये ना करें कि जो हम पिछली दफा कोशिश कर रहे थे हाईलाइट करने की, कि मरीजों को ये लगे कि वो डॉक्टर को मिलकर आए हैं, रादर देन कि डॉक्टर को ये लगे कि उसने मरीज देखा. ओके जनाब, बहुत आपका वक्त लिया. आज हमारी कोशिश ये भी थी कि हम एक फॉलो अप पेशेंट भी आपके साथ करें, लेकिन आज हमने बहुत वक्त आपका ले लिया और जो तय था वो 1 घंटा था, लेकिन डिस्कशन में भी हमारे तकरीबन इस वक्त 25 मिनट हो चुके हैं. सो इंशाल्लाह अगर चूंकि ये सिलसिला वीकली जारी है, हम कोई चीज़ जल्दी में आपके साथ नहीं करना चाहते. जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आपसे बात की कि जल्दी नहीं करेंगे. इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे आपसे गुफ्तगू का. अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपके साथ एक ऐसा पेशेंट डिस्कस करने की जो फॉलो अप पेशेंट होगा, और उस फॉलो अप पेशेंट में मिनिमली क्या एग्जामिनेशन करना चाहिए वो हम करेंगे. एक आखिरी सवाल, in exam setup if psychotic patient refuses for consent, then what to do, whether we should ask for consent to such patient or not. We must ask in examination as well. Remember, the patient with psychosis can refuse, absolutely. Now it is for them the examiner to ensure that the consent is done. You know, psychosis के अंदर consent patient भी दे सकता है, लेकिन consent उसकी family भी दे सकती है. So then that would be organized. But you must demonstrate that you take consent. इसको bypass नहीं कर सकते. हाँ, जब कोई पेशेंट साइकोसिस में है वो कॉन्सेंट नहीं दे सकता और उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्सेंट देने की, तो उसमें आप क्या करते हैं वो आपको बड़ा क्लियरली आपको एडवाइस है किस तरह से उसको किया जाता है. Who's the next of kin, you ask them, but please demonstrate to your examiners in exam that you are concerned about taking consent of patients. Okay जनाब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. Thank you very much for sparing time on a Sunday. I salute you. Thank you very much. See you next time, next Sunday, 4 o'clock, inshallah, with an outpatient assessment of a follow-up patient. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz, sir.